नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में आए तमाम सुधारों में आर्थिक सुधारों का हिस्सा प्रमुख है। इसी का परिणाम है कि ऐसे समय में जब दुनिया असमानता और अनिश्चितता से जूझ रही है, वैसे समय में भारत ने लगातार आर्थिक विकास किया है। पीएम मोदी ने जब 2014 में देश की बागडोर संभाली, तब देश आर्थिक मोर्चे पर काफी चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन पीएम मोदी के साहसिक फैसलों और संरचनात्मक सुधारों की बदौलत भारत ने जल्द ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया। साल 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। 2025 में भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह एक ऐतिहासिक छलांग है। It is my deepest wish that Modi ji should continue to serve India when independent India turns 100. Jivit Sharda Shatam Param Ardharniya Narendra Bhai. God Almighty himself has sent Modi ji as an avatar Purush to lead our motherland to become the greatest nation on earth. I have never seen a leader who worked so tirelessly for a better future for India and Indians. He first transformed Gujarat into an economic powerhouse. Now he's transforming the whole of India into a global superpower. We are the world's largest, fastest growing large economy, and we are looking ahead at decades of double-digit growth. So I think that just is the result of everything he's done in the last 11, 12 years. So to me, and I say this without exaggeration, Modi ji is a Yug Purush. As you lead India's fantastic progress and contribute to global development, the Gates Foundation values our partnership with the Government of India immensely. Together, we are supporting progress towards Viksit Bharat and sharing lessons and innovations for the countries in the global south. मोदी जी, आपके मार्गदर्शन में भारत ने नई दिशा और नई गति प्राप्त की है। आपकी दूरदृष्टि ने न केवल देश में आत्मनिर्भरता और विकास की भावनाओं को प्रबल किया है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत की छवि को और अधिक सशक्त बनाया है। आपके 2047 तक $32 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हम सब मिलकर साकार करेंगे। Your visionary leadership and steadfast focus on inclusive growth have been truly transformative for our nation. The initiatives you have championed, from financial inclusion to infrastructure development, have created an environment of confidence and opportunity for all sectors, including insurance. We at the General Insurance Council and the CI Insurance and Pensions Committee are committed to supporting your vision of a Viksit Bharat by ensuring financial security and social protection for every Indian. Your emphasis on leveraging technology and innovation has been a great inspiration for us to deepen insurance penetration and reach the last mile. We know when every citizen insured is going to make a huge difference to our country and will be truly Viksit Bharat. We are committed for that. ईज ऑफ डूइंग की दिशा में मोदी सरकार ने शानदार काम किया है। भारत में व्यवसाय शुरू करना, चलाना और उसे विस्तार देना अब पहले से कहीं अधिक सरल, तेज और पारदर्शी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में व्यापक और निर्णायक कदम उठाए हैं, जिनका सीधा असर देश की आर्थिक वृद्धि, उद्यमिता के विकास और निवेशकों के विश्वास पर पड़ा है। The Indian economy is where it is thanks to Prime Minister Modi and his policies. We are respected in the world because of him. The fact that he said that India can become the manufacturing hub for the world and initiated policies around that. When you see the capacities being created, when you see jobs being created, when you see stock markets booming, when you see MSMEs flourish, look at the scale that existed 10 years ago for any of these companies and look at where the scale is today. व्यवसायों को आवश्यक स्वीकृतियों और अनुमतियों के लिए विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने की अब आवश्यकता नहीं रही। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो व्यवसायों को नियामकीय मार्गदर्शन देने और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रणाली ने अनुमोदन की प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और जवाबदेह बनाया है।
भारत के कारोबारी माहौल में बड़ा बदलाव लाया है। इसके तहत 42 केंद्रीय कानूनों में संशोधन कर 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया। इससे सरकारी दखलंदाजी में कमी और व्यवसायियों व आम नागरिकों में भरोसे का वातावरण बना है। यह कानून मोदी सरकार की उस सोच को दर्शाता है जिसमें अत्यधिक नियंत्रण के स्थान पर विश्वास आधारित शासन को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत में व्यवसाय करने की राह में अक्सर जटिल और अप्रासंगिक कानून सबसे बड़ा रोड़ा थे। इसी दिशा में 1500 से अधिक पुराने कानूनों को निरस्त किया गया। 45,000 से अधिक अनुपालन आवश्यकताओं को हटाया गया। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 81 समझौता योग्य अपराधों में से 50 को गैर अपराधीकरण किया गया। इससे कारोबारियों को अनावश्यक कानूनी पचड़ों से राहत मिली है और नियामक वातावरण अधिक व्यवसाय अनुकूल बना है। The Make in India mission, along with the ease of doing business, has made India a global investment hub, attracting FDI of over $750 billion in the past decade. Recently, launch of critical mineral mission and reform in natural resource sector has paved the way to achieve the vision of self-reliance. Thanks to schemes such as the ELI manufacturing linked incentive scheme, we have been able to expand operations, create jobs and build globally competitive products. The emphasis on digital adoption and the ease of doing business has further enhanced our growth trajectory. The Prime Minister's effort to foster global partnerships and engage the Indian diaspora have also opened doors for cross-border trade, investment and collaboration. मोदी सरकार द्वारा किए गए इन सुधारों ने भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है। छोटे और मध्यम उद्यमियों से लेकर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक सभी को अब एक पारदर्शी और सहायक कारोबारी माहौल मिल रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस केवल एक सरकारी नारा नहीं, बल्कि व्यावसायिक संस्कृति में आया क्रांतिकारी परिवर्तन है, जो भारत की आर्थिक समृद्धि की नींव बन रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत की स्थिति में भी क्रांतिकारी बदलाव आया है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत 190 देशों की सूची में 140वें पायदान पर था। 2019 में प्रकाशित विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट DBR 2020 में भारत 63वें स्थान पर पहुंच गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में मात्र 5 वर्षों की अवधि में भारत ने 79 रैंक की छलांग दर्ज की। We are a $4 trillion economy. We are we are the fourth largest economy today. So clearly, Prime Minister understand that the economic growth will make sure that India is respected. India is engaged on the global stage. So all what is needed, I think this government and the government which is complete and as I said, majority government looks into the areas where the economic growth can happen. आपने स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे कई चीजें आपने शुरुआत करी। जब सेमीकंडक्टर चिप की चारों तरफ तहीमाम बचा हुआ था, तब आपने इस विजन को एक अपना आधार बनाया और भारत में सेमीकंडक्टर चिप को उत्पादन की आपने शुरुआत करी। यह एक स्वर्णिम अध्याय है इंडस्ट्री के लिए। अगर भारत इसमें बहुत जल्दी जब आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो भारत की इंडस्ट्रीज को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मोदी सरकार ने 2017 में जीएसटी को लागू किया था। इससे पहले अप्रत्यक्ष कर का तंत्र काफी जटिल था। केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग स्तर पर कई सारे टैक्स वसूलती थी, जिस वजह से कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। जीएसटी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कर सुधार था। इससे देश में टैक्स प्रणाली पारदर्शी हुई और राज्यों के बीच व्यापार करना आसान हो गया। जीएसटी से टैक्स चोरी पर लगाम तो लगी ही, सरकार की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। 2025 में अप्रैल महीने का जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड 2.37 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जीएसटी के लागू होने के बाद न सिर्फ सरकारी राजस्व में इजाफा हुआ है, बल्कि व्यापार जगत को भी नई गति मिली है। अब मोदी सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ा कदम उठाते हुए जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर अब सिर्फ 5% और 18% कर दिया गया है। उद्योग जगत के लोगों का मानना है कि यह कदम जमीनी स्तर पर मांग को बढ़ावा देकर भारत के आर्थिक आधार को मजबूत करेगा। जीएसटी रिफॉर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वी ऑलवेज से दी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए, एंड दिस जीएसटी रिफॉर्म्स आर हेल्पिंग बोथ।
क्योंकि if you reduce the complexity of GST, that makes it easier for industry, particularly for the smaller companies, because compliance issues become easier for them to sort out. Cost of doing business becomes easier to sort out. तो हमारे ख्याल में ये अच्छा है, ये reforms तो होना था, and I'm glad the government has taken that action. This GST reform, particularly if I speak about pharmaceutical, where it has been reduced from 12% to 5% in certain generic medicines, and in life-saving medicine it has been made nil tax. So it is something which I have never seen in the industry. It's a big reform. I think compliments and congratulations to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. GST रैशनलाइजेशन का हमने वो किया तो निश्चित रूप से इस समय जो 18% वाले GST की स्लैब थी उसको हम लोग 5% में लाए, 5% वाले को 0% में लाए, और जो घरेलू काम की जो वस्तुएं हैं, रोजमर्रा काम आने वाली चीजें हैं आम जनता की, उसके दामों में कमी आएगी। प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया पहल ने भारत को वैश्विक डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार के प्रयासों से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, रोजगार बढ़ा है और FDI में भी इजाफा हुआ है। अब भारत आयातक से निर्यातक बन गया है और सेमीकंडक्टर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत की निर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए साल 2020 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की शुरुआत हुई। साल 2014 के बाद जो मुक्त व्यापार समझौते हुए, उनके प्रमुख उद्देश्यों में से एक मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। नए औद्योगिक शहरों के विकास के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम लॉन्च किया गया। MSME पर ध्यान दिया गया। मेक इन इंडिया पर फोकस से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से आगे बढ़ा है। साल 2013-14 में जो ग्रॉस वैल्यू एडेड 17.13 लाख करोड़ रुपए था, वह 2023-24 में 38.19 लाख करोड़ रुपए हो गया। FDI और माल निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। 2004 से 2014 के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 97.7 बिलियन डॉलर था और 2014 से 2024 के बीच यह 165.1 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 2013-14 में 314.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 437.06 बिलियन डॉलर हो गया। इसके अलावा मेक इन इंडिया के अंतर्गत मोदी सरकार चिप निर्माण, बायो मैन्युफैक्चरिंग, शिप निर्माण और स्पेस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं और मेक इन इंडिया के तहत उठाए गए कदमों की वजह से भारत दुनिया भर की कंपनियों का पसंदीदा ठिकाना बन गया है। इससे देश एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। Bharat has transformed into a stronger, self-reliant and also a globally admired nation. Initiatives like Make in India is boosting not only entrepreneurship but have also encouraged a lot of people to do innovation. Honorable Prime Minister, your 11 years of governance have energized every sector of empowering youth and senior alike to fostering inclusive development and social innovation. The spirit of Make in India combined with strong economic inclusions has positioned our country as a global leader for sustainability progress. From that of 10th largest economy in the world in 2014 to that of 4th largest economy in the world now in 2025, you have created a hope for the generations to come for economic freedom, financial resilience and global competitiveness to Indian infrastructure and construction industry. We are sure with this focus, Vikshit Bharat in 2047 will be a reality. प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कोविड-19 के दौरान शुरू हुआ आत्मनिर्भर भारत अभियान आज एक व्यापक आर्थिक रणनीति बन चुका है। इससे MSMEs को प्रोत्साहन के साथ ही स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिला है। आत्मनिर्भर भारत अभियान से आयात पर निर्भरता में भारी कमी आई है। यह सिर्फ आर्थिक नारा नहीं, एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। आपका जो आत्मनिर्भर भारत एक योजना थी, उसके तहत MSME उद्योगों को और सभी स्टार्टअप करने वाले भविष्य के भारत बच्चे हैं जो, उन सबको बहुत ही राहत मिली है और बहुत ही नए नए तरीके के इनोवेशन आविष्कार हम लोगों ने किए।
the opening of the private space economy now empowers companies like Dhruva Space to drive nation building. Initiatives such as Startup India have cultivated a thriving entrepreneurial ecosystem, and the establishment of InSpace has provided the necessary framework to collaborate seamlessly with the government and also commercialize their technology. Everybody appreciate him as a leader of future, and with his vision, the growth story of India to become a Viksit Bharat in 2047 is going to happen, and we don't have any doubt that we will be Viksit Bharat before 2047. देश में छोटे शहरों के बीच अधिक से अधिक एयर कनेक्टिविटी देने के मकसद से मोदी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की। उड़ान योजना ने भारत के छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ा और आज हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। अब तक 92 से अधिक हवाई अड्डे, 637 से ज्यादा रूट्स और 1.5 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से लाभान्वित हुए। भारत के बेहतर कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे ने पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स ने धार्मिक पर्यटन को आर्थिक शक्ति में बदला और इनसे स्थानीय व्यवसायों, कारीगरों और पर्यटन क्षेत्र को नया जीवन मिला है। Indian civil aviation market has grown to be the fastest in the world over the past decade, with new airports and increased connectivity driving significant growth. As a key factor in this expansion has been Prime Minister Modi's Udan scheme, which has been a game changer in making air travel accessible to millions of citizens in smaller towns and cities. Under the leadership of Prime Minister Modi, India is not just a participant in the global economy, it is a vibrant, inclusive and powerful force for growth. The tourism sector stands as a shining example of this transformation. The Prime Minister's vision of showcasing India's culture, heritage, coupled with schemes such as Prasad and Swadeshi Darshan, has brought a round focus on states like ours. Rajasthan's forts, palaces, havelis, deserts, landscapes, festivals, attracting more domestic and international tourists. एक दशक पहले तक स्टार्टअप शब्द केवल कुछ शहरों तक सीमित था, लेकिन आज 1,92,049 स्टार्टअप भारत के कोने कोने में है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2014 में भारत में केवल 4 यूनिकॉर्न थे। 2025 तक यह संख्या 118 तक पहुंच गई है, जो मजबूत घरेलू नवाचार और निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। इस सफलता के पीछे है मोदी सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना है, जिसके तहत टैक्स में छूट, फंडिंग और इंक्यूबेशन सपोर्ट मिला और सबसे अहम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल। Young companies like us and young entrepreneurs like us, especially in tier 2 cities, have been given a lot of awareness about sustainability, and we also provide an ecosystem where not only the product quality matters, but also the carbon neutral and the ESG around the products. On this occasion, I urge all entrepreneurs in tier 2 cities to make it big, and I thank the government and the Prime Minister's vision to take us forward. Under your visionary leadership, India is moving with confidence, innovation, and global recognition. Industry and society alike draw inspiration from your tireless commitment to nation building. We in CII and Honda remain committed in the journey of Atmanirbhar Bharat and sustainable future for all. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से देश में उद्यमियों के लिए माहौल बना है। युवा अब केवल नौकरी ढूंढते नहीं, बल्कि वे नौकरी देना चाहते हैं। चाहे महिला उद्यमिता हो, टियर 2 और टियर 3 शहरों से आने वाले इनोवेटर्स हों या ग्रामीण स्टार्टअप, हर किसी को मिला है समान अवसर।